गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं। लाइफ प्रोसेसेस के न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ लिया। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। जितने भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में 4 पार्ट्स कंसिस्ट है। ए पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज, ए यूरिनरी ब्लैडर that collect the urine, a pair of ureter that is a tube-like structure, and urethra opening for the passing out the urine. See, here is the diagram. This is 2 parts of kidneys. This is the dorsal aorta, inferior vena cava that collect the blood from the heart and passes to the kidneys filter that blood and harmful processes are filtered and passes to the ureter. This is the ureter, long tube like structure, and this is a urinary bladder for collecting the urine, and this is a opening that is called urethra. Renal artery, renal vein, renal artery collect the blood from the dirty blood, and renal vein passes the filtered blood to the back to the body. So dorsal aorta and inferior vena cava that help in sending the impure blood to the heart. So 4 parts, 2 pair of kidneys, ureter, urinary bladder, and urethra. Now first, what is kidneys? Kidneys, in each there are 2 kidneys in man. They are dark bean shaped organ. See, they are bean shaped organ. जैसे हमने राजमा देखे हैं। कहाँ पे लाई करती हैं? Kidneys are present on the backbone of the abdominal cavity. Every person has 2 pair of kidneys. Blood in our kidneys, body or kidneys is passing constantly. The renal artery brings in dirty blood. See here, the renal artery collects the dirty blood of dorsal aorta and inferior vena cava, passes from the dorsal aorta. Blood comes in from the dorsal aorta is connected to the heart, and from the dorsal aorta the dirty blood goes into the renal artery. See, the renal artery brings in the dirty blood. The function of kidney is to remove the poisonous substances. Now kidney filtrate the poisonous substances, urea, other waste, salt, and excess water from the blood and excrete them in the form of a यूरिन. तो यूरिन के फॉर्म में वो कहाँ पे आ जाएगा? यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से पासेज आउट हो जाएगा उसका यूरेथ्रा में. दस किडनीज क्लीन आवर बॉडी बाय फिल्टरिंग इट टू रिमूव द अनवांटेड सब्सटेंसेस. So kidney act as a filtrate to remove the unwanted substances. After that, structure of a kidney, each kidney has a many complicated structure. Each kidney has a coiled structure called the nephron. So what is nephron? The structural and functional unit of kidney is called nephron. Each kidney has a coiled structure called nephron, and nephron is the structural and functional unit of kidney. अगर हम बात करें कि जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट सेल है, उसी तरह से किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है हमारे पास? नेफ्रॉन. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन? अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन में क्या है? पहले बोमेन कैप्सूल्स है, बोमेन कैप्सूल के बाद ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप, और ये दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेलपीजियन बॉडी. फिर इसके बाद इसमें इफरेंट है, एफरेंट और इफरेंट आर्टिकुला. दिस इज द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन. अगर हम बात करें दोबारा से
किडनीज की, तो एक चीज़ की structure of a nephron. Again continuing, what is the structure of a nephron? Each nephron has a cup shaped and called Bowman capsule. This is a cup shaped and is called the Bowman capsule. In the Bowman capsule क्या है, बंडल है ब्लड कैपिलरीज का. दिस इज द ब्लड बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये पूरा क्या है हमारे पास, येलो कलर का बोमेन कैप्सूल. इसमें बंडल है ब्लड कैपिलरीज का जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस. और उसके बाद आ गया हमारे पास बोमेन कैप्सूल और इस पूरे को हमने बोल दिया मेल्पिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल. ये आ गई हमारी रीनल आर्टरी और रीनल वेन. रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करेगी और रीनल वेन जो क्या है प्योर ब्लड को वापस क्या है बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी. फिर इसमें आ जाती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूब और ये क्या आ गई कैपिलरीज, जिनका हम मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे. जो यूरिन की फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, हाउ यूरिन इज फॉर्म. नाउ फर्स्ट इसमें क्या आ गया कि बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल में इनक्लोज्ड क्या है, ग्लोमेरुलस कप लाइक स्ट्रक्चर है. कलेक्टिवली हमने बोल दिया मेल्पिजियन बॉडी. और बोमेन कैप्सूल में जो लाइनिंग है एपिथेलियम की, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है. और एक एफरेंट आर्ट्रियोल. दिस इज द efferent arteriole which bring waste and excess water. efferent arteriole that is connected to the Bowman capsule, जिसने क्या किया एक्सेस वेस्ट वाटर को बॉडी टू किडनी में, बॉडी से कलेक्ट करके किडनी और किडनी से एंटर कर गए हमारे बोमेन कैप्सूल में. ये एफरेंट आर्ट्रियोल का क्या काम है कि रीनल आर्टरी से ही क्या निकल रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल, रीनल आर्टरी से निकल रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल. जो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे एंटर कर गए, बोमेन कैप्सूल में. और इनसाइड ये किस में डिवाइड हो रहा है, ग्लोमेरुलस में, ब्लड कैपिलरीज में. इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट क्या कर रही है, लीव कर रही है. एफरेंट जोड़ रही है और इफरेंट क्या कर रही है, लीव कर रही है. यहाँ पे एफरेंट क्या है, एंटर कर रही है और इफरेंट क्या है, लीव कर रही है. तो इफरेंट आर्ट्रियोल किस में फर्दर ब्रेक कर गई, बहुत सारी कैपिलरीज में. एफरेंट जा रही है और इफरेंट लीव करी है बहुत सारी कैपिलरीज में. और बोमेन कैप्सूल किस में लीड कर गया, हमारा रीनल ट्यूब्यूल में. सी हेयर इज द रीनल ट्यूब्यूल. नाउ रीनल ट्यूब्यूल इज कोल्ड रीनल. ये जो सारी है पीसीटी डीसीटी ये सारी क्या आ गई हमारी रीनल ट्यूब्यूल. तो रीनल ट्यूब्यूल क्या है, हाईली कॉइल्ड डक्ट है. जो पीसीटी और डीसीटी कलेक्टिवली हम, तो ये इफरेंट किस में मिल गई, जो येलो और रेड पीसीटी और डीसीटी, इसको हमने कलेक्टिवली क्या बोल देना है, रीनल ट्यूब्यूल. और इसमें है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली एंड कलेक्टिंग डक्ट. तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ज्वाइन टू फॉर्म अ कलेक्टिंग डक्ट. और कलेक्टिंग डक्ट क्या करेंगे, यूरिन को ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे क्या है, जितना भी रीनल आर्टरी में ब्लड आ गया डीऑक्सीजनेटेड और वेस्ट वाला ब्लड, एफरेट ने क्या कर दिया, बोमेन कैप्सूल्स के ग्लोमेरुलस में गया. ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्टर करके वो इफरेंट से गया. इफरेंट से जाता हुआ प्रॉक्सिमल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूब्यूल और कलेक्टिव डक्ट में कलेक्ट होके नेफ्रॉन क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे जो भी यूरिन है उसको रीनल पेल्विस में. नाउ हमारे पास उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारा यूरिटर था. सेकंड पार्ट क्या है हमारा, यूरिटर. यूरिटर क्या है, ये नैरो ट्यूब्स है विद थिक मस्कुलर वाल जो पेल्विस से क्या होंगी, स्टार्ट होंगी. नाउ व्हाट आर यूरिटर, नैरो ट्यूब्स जो पेल्विस से स्टार्ट होके किडनी में क्या करेंगी, एंटर करेंगी. और इनका काम क्या है, दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. यूरिटर क्या है, हमने डायग्राम में देखा था कि दो ट्यूब्स हैं, बस इनका फंक्शन है कि ये यूरिन को कैरी करेंगी यूरिनरी ब्लैडर तक. यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्डर है जो रिसीव करेगा यूरिन फ्रॉम किडनीज. और व्हाट इज यूरिथ्रा, यूरिथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब विच स्टार्टेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. इट ओपन्स टू आउटसाइड बाय अ
ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग में क्या है, गार्डेड बाय मसल स्फिंक्टर. इन मेल्स ओपन एट द टिप ऑफ पेनिस एंड बोथ कैरीज यूरिन एंड स्पर्म, एंड इट फीमेल्स ओनली. In females only carries urine and open by urethral opening in the vulva. तो मेल में एक सिंगल ओपनिंग है, फीमेल्स में क्या है 2 ओपनिंग्स है. तो यहाँ पे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया.